Hello students, in this video we are going to learn about direct and indirect speech. There are many subtopics, important concepts involved in learning about direct and indirect speech. We are going to see each one of them, okay, in detail. So in this video we are going to learn about the basics of direct and indirect. Apart from that, the first rule of tenses. Fine. So let us begin. First, try to understand what do you mean by direct speech. So let me explain you that. Okay. Direct speech. First, let me write down the definition, and if you want to make the notes, you can make the notes along with me. So start writing. When the spoken words are presented in the same way without making any changes, it is called direct speech. Okay, so let us try to understand the definition. So it means that when the spoken words are presented in the same way. Okay, so important keyword over here is same way. You cannot alter the meaning. You cannot add your own words when you are making a direct speech statement. Okay, without making any changes, you are not allowed to make any changes here. Then it is called direct speech. Let me give you one example. For example, if I say, he said, comma, what he said, I'm going to write over here, I am very happy. Okay, now you have to put a full stop and then quotation over. Okay, he said I am very happy. Okay, what you are saying is the same words. Okay, it's the same sentence. तुमने इसमें कुछ भी add नहीं किया या कुछ remove नहीं किया. So this is known as direct speech. अभी इसी को मैं indirect speech में कैसे लिखूंगा और उसका मतलब क्या होता है, चलो वो समझते हैं. Okay, so let me write down the definition of indirect speech now. Indirect speech. टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है. ठीक है. When the spoken words are presented by you in your own words, it will be indirect speech. Okay, so let us try to understand this definition. When the spoken words are presented by you, अभी कीवर्ड तो समझ में आ गया होगा कि इसमें कीवर्ड कौन से होंगे. By you in your own words. ठीक है. इसी स्टेटमेंट को अगर मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ, अपने शब्दों में, तो वो क्या बन जाएगा, वो इनडायरेक्ट बन जाएगा. ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ही सेड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये क्या बन जाएगा, सेम एग्जाम्पल विल चेंज टू पास्ट टेंस. ओके, इसीलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टेंसेस के क्या रूल्स होते हैं. ही सेड दैट, यहाँ पे हम दैट लगाएंगे कंपल्सरी. ही सेड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी. ओके, यहाँ पे कोई कोटेशन मार्क ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल फुल स्टॉप आएगा. ओके, अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि बेसिक्स कैसे हमें ध्यान में रखना है, ना हाउ इट इज़ वेरी यूजफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके, सबसे पहला रूल, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है. डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, एंड फुल स्टॉप
हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन मार्क. ये बेसिक्स हैं, ये सभी को पता है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं एक बार. एक्सक्लेमेशन मार्क and this is full stop. Can anyone full stop? Okay, fine. Now direct speech, question mark, exclamation mark and full stop is allowed, but in indirect speech if it is a question mark you have to use full stop. Okay, keep that thing in mind. अगर exclamation mark होगा तो भी फुल स्टॉप, अगर फुल स्टॉप है तो भी फुल स्टॉप. दैट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में हम कभी भी क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन या तो फिर फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं. ये दो क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये प्लीज़ ये पॉइंट अपने ध्यान में रखना. एंड क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के भी कुछ रूल्स होते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. एंड let us see some examples. The first example is he said he is happy. As you can see over here, there is a question mark over here. Okay, so the answer will be he asked if he was happy. Okay, इसके जो रूल्स हैं दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट्स. ओके, फॉर द टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट्स टू फुल स्टॉप. एंड जब हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दिस. स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग. लाइक इज अ वर्ब. ओके, सो व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन हम वर्ब पहले लिखते हैं, ही इज़ अ सब्जेक्ट, ही बाद में लिखते हैं. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में ये कंसेप्ट ऑब्वियसली हम यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज करेंगे तो क्या पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा एंड क्वेश्चन मार्क इज़ नॉट अलाउड. ओके, सो ही आस्क्ड इफ़ ही वॉज हैप्पी. यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है. कुछ रूल्स हैं जो हमें बाय हार्ट करने पड़ेंगे. चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे. ही सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर. ओके, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो हम ज़रूर से ये यूज़ कर सकते हैं. ही एक्सक्लेम्ड that it was a very beautiful flower. Okay, he exclaimed that it was a very beautiful flower. As you can still see over here, this is a full stop statement, ठीक है. Okay, next one. My brother said they had been waiting for the bus. So this will be my brother said that they had been waiting for the bus. Okay, you must be thinking as what are the rules basically. Okay, so in this I'm not going to explain the rules that I'll be explaining in the upcoming videos. Okay, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन फुल स्टॉप में चेंज हुआ, एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप में चेंज हुआ, और ये जो फुल स्टॉप स्टेटमेंट था वो भी फुल स्टॉप स्टेटमेंट में ही रहा, ठीक है. यहाँ पे जैसे इफ़ हमने यूज़ किया, क्यों किया, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड क्यों किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है. वो हम एक एक करके इस वीडियो सीरीज़ में हम समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या क्या रूल्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है. वो सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा. फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट वीडियो ऑन टेंसेज, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू.